interactions are for ensuring that practice meets theory across all functional areas. Only these interactions help to tackle the doubts and concerns that we as students usually have about industry. And today we are fortunate enough to have Mr. Sandeep Bhardwaj sir here with us to talk about the topic latest trends and career avenues in electrical engineering stream. So, before going any further, I would like to invite Mr. Pratap Malik sir, Director, Training and Placement Cell, to formally welcome Mr. Sandeep Bhardwaj sir in this webinar. Sir, please. Okay, thanks a lot, Lalita. So, very good morning to all of you. Good So, morning, sir. first of all, I would like to express my heartiest welcome on behalf of our Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, and especially Training and Placement Cell and Electrical Engineering Department to Sandeep Bhardwaj ji, Thank you, sir. who is today in our this webinar to interact with the students regarding latest trends, technologies of electrical engineering department. So I know Sandeep ji since last many years. So he did his BTech in electrical engineering from YMCA University Faridabad, and currently he is working as quality manager with Manitoy Group, uh, which deals in construction equipment and machine manufacturing company role supplier quality assurance for electrical commodities. So he is having rich industry experience of more than 9 years in the field of quality assurance uh, in electrical engineering. So students, these types of industry interaction programs are specially conducted for a very specific purpose, and that purpose should be clear to all of you. When you are in a university, so you go through your entire academic syllabus, but whatever the requirements of industries are, you should be well aware of those requirements. And when you talk with the person from industry itself, then you come to know exactly what industry expects from you, what are the requirements of the industry, what is the work culture, what is the environment in the industry. So these things can be learned by the people who themselves are working in the industry. So for this very purpose, such type of industry interaction programs are very mandatory, very necessary. So we keep on conducting these programs for various departments. So recently we thought that because electrical engineering department is comparatively newer one, so we are having third year students, we are having second year students. So we decided that for you people also such type of industry interaction program should be conducted. So we talked to Sandeep Bhardwaj ji, who is not he's just your senior, you can say, because Yes. because people learn from their immediate seniors in better manner as compared to very senior people from the industry, because immediate seniors can better communicate what problems you people face during your college timing. Yes. So that's why we have chosen Mr. Sandeep Bhardwaj ji to come in our webinar. So with these words, I again welcome Sandeep ji. I also express a welcome to Dr. Priti Prabhakar ji, who Thank is in you. our webinar, who is in charge of electrical engineering department, and who keeps on motivating the students of electrical engineering department to perform better. So we welcome Dr. Priti Prabhakar ji also, Thank and you, sir. Thank you thank very you. much, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. So, and I welcome all the students of BTech Electrical third year and Electrical Engineering second year who are present in this webinar to attend this industry interaction program. Thanks a lot. Yes, Lalita. So my Lalita, Thank you, voice over is sir. to coming. My voice is coming. Yes, sir. you. Huh. I would like to humbly request Mr. Sandeep Bhardwaj sir to give his presentation on the topic latest trends and career avenues in electrical engineering stream. Over to you, sir. So first of all, I would like to thanks to Mr. Pratap Malik, Director of Training Placement of Guru Jambeshwar University, and Priti Prabhakar ji, Department Head of Electrical Engineering, and Raghav Saini, the
student of the electrical engineering, and Lalita also. And I would like to thanks to Guru Jambeshwar University faculty to give me give me introduce myself in front of you, and it's my pleasure uh, in front of you. I introduce myself. So thank you very much, Guru Jambeswar team, and I would like to start my presentation on electrical opportunity and opportunity careers also, and electricals growth in markets and trends in markets, and what's going on in electrical engineering. So right now I'm starting my screens. Sandeep ji, I would like to mention this thing that it would be better if you can present in Hindi and English mix. Yes, दोनों yes, भाषाओं yes. में मिलाकर हम करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में. Yes, thank you, Pratap ji. For today, electrical engineering code for electrical engineers. So first of all, I would like to proud I am electrical engineering and my whole experience in electrical engineering from last 9 years, and so all electrical engineers can proud you are electrical engineer. If you give us any form of energy, we can convert into electrical energy and lights to worlds. So you can proud to you are electrical engineer. So next, actually we are manufacturing of the construction equipments for the construction and or farmers also. So we are we have four projects. One is the telehandler, you can say left side. Another one is a skid steer. Another one is the AWP, aerial work platform machines. So we are mostly using in airports or high buildings areas. And another also you can normally see in our farm also, backhoe loader. So heavy construction work, we can use these machines to reduce the cost and the time, reduce the time also. So in which the many electrical parts we are using, like harnesses, horns, lights, and switches, and display board, instrument measurements, speeds controls, and sensor also, electrical electronic sensor also. So lot of electrical part we are using in a telehandler, skid steer, and AWP machines. So major roles of electricals parts in the telehandlers machines and backhoe machines. And so we are manufacturing of electrical vehicles also for aerial work platform machines. So next I am moving to electrical engineering is the branch of engineering which deals with the study of the application of electricity and electronics and electromechanism. You are in regular practice study the electrical and electromechanism principles and theories also. So today we will discuss on the applications of the electrical engineer and electrical parts also. So electrical engineering, signal processing, electromechanism capability, automobiles and vehicles, what we are doing in the present and what's going on. The electrical engineering is in the beginning and the half of the 19th centuries. We are working with the electrical telegraph, telephones, and electrical power distributions. So today, the following branches have emerged from the electrical engineering. You can say the electronics. You are also studying in the power electronics also, and digital computers, power plant engineering, and the control system, signal processing, and the telecommunications in the regular in the current scenario. So today electrical engineering is going to the renewable energy resources and changing the world, because you know the resources
reduce day by day, and population increase day by day. So in that case we need to move in the renewable energy source is the only solution for the future, in India also and world also. uh, all world's people are thinking about the renewable energy sources, in which you can say the solar energy, hydro, and geothermals, and biomass and biofuels, and small wind turbines, and solar space heatings, and the combined heat and power energy sources. So we need to think, all electrical engineers, about the renewable energy sources. What can we do for a better world and better country? So I have also explained to the some electrical parts, in which I have already exposure with the starter motors, alternators, and how to use in the automotive sector, starting and the charging system in the electrical vehicles. That is very important in electrical cars also, and electrical vehicles, all electrical vehicle, construction vehicle. You can say we are using this system. Before some time, you can say the manual starting was there. We start a manual engine and then we can start the vehicle. Now we are going with the automotive. To start, when we start the crank the key, and we can start the engine. And for comfortness and smart work, we are using all electrical parts. So starter motor, very well, some child part, like armature, solenoid switch, and field windings also. You are also studying in electrical engineering, third and fourth year. And alternator also, stator windings, rotor in which some closed shaft o-rings, and windings also, rotor windings also. And rectifier, in which the you have also study half wave, full wave, bridge rectifier. That is very important for the electrical engineers. In normally we can produce only AC voltage, and we can store only DC. So in that case we need to use all power diodes and the auxiliary diodes. So power diodes have 32 amperes and 42 amperes ratings, and the auxiliary diode normally you are using 2 to 5 ampere ratings, and regulators also. So in armature I have already explained. So this is the electrical circuit for the charging system. If you have any query, you can ask, and you can raise your hand, you can ask. No, not an issue. So in alternator and starter motor, when we crank the key in the vehicle, you know uh, first of all, our solenoid switch, in last slide, this switch in the starter, left side in the top corner, there is solenoid switch. This part is working like a switch. When we crank the key and motor engage with the flywheel of the engine, rotate the flywheel of the engine, so then our vehicle is start. And after that also our alternator pulley, middle of the slide, you can see the alternator pulley, and this is also attached with the engine flywheel. So when our engine is start, and electromechanism principle, when a current carrying conductor placed in a magnetic field then produce the EMF, then produce voltage. See, voltage in the starter, there is some connection, star delta connection, and after that this AC voltage converted by rectifier into DC voltage, because we don't store we cannot store in AC voltage. we हम केवल AC को प्रोड्यूस कर सकते हैं, AC को हम स्टोर नहीं कर सकते, और DC को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें रेक्टिफायर में डायोड यूज करते हैं हम लोग। उसको हाफ वेव फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की सहायता से हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं।
तो ये हमारा स्टार्टिंग मैकेनिज्म रहता है गाड़ी में, हम लोग कैसे उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अल्टरनेटर की वर्किंग पे आते हैं। अल्टरनेटर काम कैसे करता है किसी भी गाड़ी में, किसी व्हीकल में, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें आप देखेंगे एक स्टेटर वाइंडिंग है, एक रेक्टिफायर है, इसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर है, और इसमें एक रोटर है। जो आप इसमें तीन डायोड देख रहे हैं सभी, यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। सो इसमें तीन 6 पावर डायोड लगे हुए हैं। सो हाफ साइकिल में पहले तीन काम करेंगे, उसके बाद बचे हुए तीन काम करेंगे इसमें। तो जब भी हम बैटरी से स्टेटर को स्टेटर वाइंडिंग्स को और रोटर्स को हम जब सप्लाई करते हैं, जब स्टेटर सबसे पहले हमारे रोटर में हम लोग वोल्टेज देते हैं, मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है इसके अंदर, और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो स्टेटर की वाइंडिंग्स को कट करेंगी और उसमें एसी प्रोड्यूस होगा। जो एसी इसमें स्टेटर में जो प्रोड्यूस होगा वो हम लोग रेक्टिफायर, आप देखेंगे स्टेटर की जो तीनों वाइंडिंग्स हैं वो रेक्टिफायर के साथ कनेक्टेड हैं। जो तीनों फेस हैं वो हाफ हाफ करके उसको एक डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को सप्लाई देते हैं, और हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम व्हीकल्स में बैटरी यूज करते हैं कि बैटरी की वोल्टेज तो कुछ टाइम बाद ही ड्रेन ऑफ हो जाएगी अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तो उसका जो चार्जिंग मैकेनिज्म है वो यही रहता है। जब भी हम क्रैंक करेंगे तो हमारी स्टार्टर मोटर इंजन के फ्लाई व्हील को रोटेट करेगी और इंजन स्टार्ट करेगा, और इंजन का जो फ्लाई व्हील है वो वो बेल्ट की सहायता से उसको अल्टरनेटर को मूव करेगा। और जब भी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन प्रोड्यूस द एसी वोल्टेज इन द स्टेटर वाइंडिंग। तो जब भी रोटेटिंग जो रोटर था हमारा वो स्टेटर की जो वाइंडिंग्स है तो उसकी कट करेगा, जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करेंगे। इसमें किसी की कोई क्वेरी है? इफ यू वांट एनी क्वेरी। राघव, हेलो। Hello. भूपेंद्र शर्मा की है सर। हेलो, Morning, sir. गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर मेरा डाउट इसमें ये है कि जो डायोड्स इसके अंदर यूज किए हुए हैं, यस अगर हमें उनका रेटिंग फाइंड करना है यस, तो कैसे फाइंड करेंगे सर? ये जब हम इसको डिजाइन करते हैं किसी पार्ट को, भूपेंद्र थैंक यू फॉर योर क्वेरी, गुड क्वेश्चन। जब भी हम किसी भी पार्ट को डिजाइन करते हैं सबसे पहले हमें उसकी जो डिजायर आउटपुट होती है वो हमें पता होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो सिलेक्शन होता है पार्ट्स का वो हम लोग करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे जो अल्टरनेटर की रेटिंग क्या है। अगर मान लो हमारा अल्टरनेटर 65 एम्पियर्स का है तो हमें इसके लिए 32 एम्पियर्स के हमें डायोड चाहिए होंगे, 3 डायोड चाहिए होंगे इसको। तो जो पूरे कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करके इसको डीसी बैटरी में कन्वर्ट करेंगे इसको। ये जो आप देख रहे हो तीन तीन डायोड है, ये पावर डायोड है, और ये जो तीन डायोड है ये ब्लॉकिंग के लिए यूज किए हुए एक्जुअली डायोड है। ये इसकी रेटिंग 2 से 5 एम्पियर होती है, और इसकी जो 32 से 38 एम्पियर्स के पावर डायोड्स होते हैं। ठीक है, वी कैन एनीबडी? Because this topic is very interesting for the all electrical engineers, वेरी इंपॉर्टेंट। आप फील्ड में जाओगे आपको ये चीजें, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जाओगे, ये सर्किट आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको स्पेशली मेंशन किया इस पीपीटी में, क्योंकि कोई भी व्हीकल है, कोई भी कंपनी, चाहे वो मारुति हो, होंडा हो, टोयोटा हो, उसका मैकेनिज्म यही रहता है। हेलो सर। भूपेंद्र पूछो। यस
भूपेंद्र पूछो अपना क्वेश्चन। अरे भूपेंद्र को अनम्यूट अनम्यूट करो ना। आई गेस भूपेंद्र नेटवर्क इशू है इसलिए उसका हो नहीं रहा है। भूपेंद्र अपना मैसेज टाइप कर दे चैट बॉक्स में। नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, एक बार पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए, यस, उसके बाद फिर हम एक साथ सारे क्वेश्चंस को ले सकते हैं। दैट वुड बी बिल्कुल बेटर। जी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। So all electrical engineers should have to know how to generate the electrical power and how to transmission and how to distribute and how to use in home applications and industries. It's also very important for all electrical engineers. So मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सबसे भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। तो इसमें कौन सी बैच के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है या ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है इसमें? संदीप जी इसमें बीटेक थर्ड ईयर और बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। थर्ड ईयर, ओके। सो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे कोई बताएगा कि आपने पढ़ा भी होगा, जब हम इलेक्ट्रिकल जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, तो कितनी वोल्टेज पे जनरेट करते हैं? चैट बॉक्स में लिख दो स्टूडेंट, चैट बॉक्स में। 11 kV से। राइट आंसर। इसकी रीजन क्या है, इसका क्यों करते हैं इसको 11 केवी पे? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीजें। 11 केवी पे इसलिए हम जनरेट करते हैं, जो हमारा जो अल्टरनेटर होता है, जिससे हम जनरेटर होता है जिससे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे ही हम इसकी जो वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसके जो इंटरनल जो पार्ट है उसका एक लिमिटेशंस होती हैं, और जो लॉसेज हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही हम उसको हाई रेटिंग पे उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके लॉसेज इंक्रीज हो जाते हैं। और दूसरा हाई उस पे हम लोग इसको डिजाइन नहीं कर सकते अल्टरनेटर को, क्योंकि इसकी जो लेंथ है और जो डाया है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसलिए हम इसको 11 केवी पे करते हैं। और ये 11 के उसमें ही क्यों होता है, मल्टीपल में क्यों होता है, कोई बताएगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम में से किसी ने अगर ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी है, उसमें एक चीज है, जो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होता है, ईएमएफ जब प्रोड्यूस होता है, उसमें जो साइन वेव होती है एसी सिग्नल की, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 1.1 करके उसकी फैक्टर में होती है। तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा, आप कभी भी देख लेना, किसी भी पावर जनरेशन में देख लेना, आपको मिलेगा 66 केवी, 33 केवी, 11 केवी, 220 केवी, 440 केवी। आपको हमेशा यही मिलेगा, इसके अलावा आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। इसका रीजन यही है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं वो 1.1 के फैक्टर में ही आती है। उसकी जो साइन वेव होती है, सिग्नल होता है, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है 1.1 की उसमें होती है वो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक बार इसको गो थ्रू करें। आप जब भी इसको स्टडी करें, जो ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है उसमें आता है। इसमें कोई क्वेरी है किसी की? तो पावर प्लांट जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग 5 और 6 टाइप से हम लोग इसको जनरेट करते हैं। नॉर्मली हम लोग थर्मल पावर प्लांट से ही यूज करते हैं, क्योंकि उसकी इजीली उसकी एफिशिएंसी हाई होती है।
बाकी आप सोलर और विंड टर्बाइन हम लोग इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो सीजनल बेसिस होते हैं, और दूसरा उसकी एफिशिएंसी हाई नहीं होती, तो इसलिए हम मोस्टली हम लोग थर्मल पावर प्लांट ही यूज करते हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट। सो जब भी हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं 11 केवी पे, तो उसको हम लोग हाई वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टेप अप वोल्टेज करते हैं, उसको वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। वोल्टेज स्टेप अप करके हम लोग उसको हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, 440 kV and more than 440 kV also. So I have also exposure with the transmission and distribution system also in HVPNL Haryana Vidyut Prasaran Nigam from 2009 to 2010. So that's why I mentioned this. तो जैसे ही हम 440 पे इसको लेके जाते हैं, स्टेप अप करके ले जाते हैं वोल्टेज को, तो इसको स्टेप अप हम इसलिए करते हैं, जो हमारी एफिशिएंसी है, हमारे जो लॉसेस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको स्टेप अप हाई स्टेप अप करके वोल्टेज को ले जाते हैं। फिर हम दोबारा क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन से हम लोग इसको क्या करते हैं, वोल्टेज को डाउन कर लेते हैं। जैसे 440 ग्रिड सब स्टेशन होते हैं, हमने देखा भी होगा, हमने विजिट भी किया हुआ यहाँ पर। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको 66 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 66 से हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको 11 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो और भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई आती है, वो 220 केवी सॉरी 220 वोल्ट आती है, 230 वोल्ट आती है, वो भी कम आती है। उसमें भी बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं, लोड की वजह से हो जाते हैं, लाइंस लॉसेज हो जाते हैं। तो जब हमारे घरों में आती है तो हम स्टेप डाउन करके देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ा होगा, जो एच पोल होता है हमारा, स्ट्रीट में देखा भी होगा आपने, एक ट्रांसफॉर्मर होता, 3 फेज आते हैं, उसको स्टेप डाउन से हम उसको वोल्टेज डाउन करते हैं। उसका एक गैंग ऑपरेटिंग स्विच होता है, तो उसको ऑपरेट करके हम लोग इसको सिंगल फेज 3 फेज सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज में कन्वर्ट करके होम एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। आपने एक मेरे होम एप्लीकेशंस पे आ गया हूं मैं, तो एक चीज मैं और भी पूछना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा कि जो हमारी जो घरों में जो हम लोग वायरिंग करते हैं, उसके कनेक्शंस होते हैं वो ऑलवेज पैरेलल में होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि अगर हम सीरीज में कर देंगे तो हम एक स्विच से सभी को ऑपरेट कर सकेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। जो कि हमें नहीं चाहिए। वेरी गुड आंसर आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम उसको पैरेलल में क्यों करते हैं उसको। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, पावर जनरेशन से लेके पावर ट्रांसफॉर्मर में आता है, तो इसका पूरा कंप्लीट लेआउट है। हम बिजली को कैसे पैदा करते हैं और कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्मर से, टावर से, ये देखा होगा आपने आइसोलेटर्स, ये भी काफी टाइप्स के होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज। डिश टाइप होते हैं, पिन टाइप होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें। तो इसकी हाइट, ये सब चीजें सब उसमें डिजाइन में आती हैं, सब चीजें कि आपको कितनी हाइट रखनी है। और ये वायर्स आप देखोगे लटकी वायर्स है, इसको बोलते सैग बोलते हैं लोग, सैग सैग भी डिफाइन होता है हमारा सैग, ये हमारे पावर फैक्टर को भी इम्पेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग पावर ट्रांसमिशन सबस्टेशन में आ जाते हैं। जैसे हमने पावर को जनरेट किया, फिर पावर को हमने ट्रांसफॉर्मर किया, फिर पावर को हमने सब स्टेशन में आ गए। सब स्टेशन के बाद हमने जब ये जो मिडल में देखो आप, ये जो एस टाइप पोल्स लगे हुए हैं, हेल्प ऑफ एस टाइप पोल्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल पावर टू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस, and after that we can distribute in the commercial and industrial business also. इसके बाद एक हमारी कॉमन बस बार बन जाती है। तो मैं आगे मैं इसको दिखाऊंगा आप लोगों को, सर्किट में पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग 11 केवी सप्लाईज हम लोग इसको कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर्स को दे देते हैं। और इसके वीसीबी से हम वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से हम इसको ऑपरेट करके हम लोग सप्लाईज को इंडस्ट्रीज में और होम एप्लीकेशंस में इसको हम लोग दे देते हैं। जिसका मैकेनिज्म, ये पूरा मैकेनिज्म रहता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का।
इसमें एक नई टेक्नोलॉजी है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। ABB, I have also 7 months industrial training exposure with the ABB company, is the worldwide 143 rank company. He is dealing with the transmission, distribution, and power generation, transformation, and the instrument VLDC, variable frequency control devices also. So very biggest company in the world. They are dealing in the nuclear power generation also, and electrical is the very big name for the electrical industry. So this is located in Faridabad and Bangalore. In India, 2 plants. So I training 7 month industrial training from these plants. They are manufacturing of the uh, motors, inductions motors, synchronous motors, different type of motors, and the instruments parts. You can see the frequency control devices and the pressure transmission and this transmitter also. So this is a gas insulated substation in which the SF6 gas we are using. So is a very popular new technology in the transmission and distribution system. So in Haryana, 2009, first GIS insulation substation is installed in the sector 43, and so in which SF6 is filled. So all circuit is controlled by SF6 gas, and insulation property of SF6 gas is the 6 times the another equipments. So that's why we are using this technology. इसमें क्या होता है, हम लोग जो स्पार्किंग्स होती हैं, जो फेलियर्स के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, जो एफिशिएंसी है वो हाई है, जो रिलायबिलिटीज है वो इसकी अच्छी है, तभी हम लोग इसको कॉम्पैक्ट है। हम देखेंगे कि बड़े बड़े सब स्टेशन में जहां पर जो हाई पॉपुलेशन एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, हम वहां पर हमें अगर जमीन की बात करें तो हमें अगर मान लो कोई पावर सब स्टेशन लगाना है तो हमें इतनी जमीन कहाँ से मिलेगी। तो उस केस में हम लोग इसको किसी बिल्डिंग के ऊपर भी हम लोग इसको डायरेक्टली टावर्स के थ्रू हम लोग ओनली हमने इनपुट्स देनी है, इसको इनपुट वोल्टेज देनी है, ये हम इसको स्पेस बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे ही हम लोग मैं सर्किट पे आता हूँ, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, जैसे 220 kV हाई वोल्टेज बसेस होती है, बस बार बोलते हैं, जिनके थ्रू हमें वोल्टेज मिलती है। तो इस हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 breaker also. That is depend upon our application and cost and efficiency also we can decide. उसके बाद हम लोग सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, LV सर्किट्स ब्रेकर की हेल्प से उसको बस टू ब्रेकर्स 11 kV में कन्वर्ट करके 11 kV को फिर हम सिंगल फेसिस में कन्वर्ट करके होम एप्लीकेशंस में और हम लोग इसको कमर्शियल इंडस्ट्री में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम रहता है। So electricals में हम if we are talking about the electrical power, so main thing is generation and storage and distribution of electrical, and then the control design of dynamic system and control of the system, electronic and microelectronics design of the integrated circuit and microprocess. ये जो आज का जो टाइम है ये डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर का है। सो हमें इजी और कंफर्ट के लिए जो चीज चाहिए होती है हमें, सो हमें इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर वेरी यूजफुल इन द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, and telecommunication design of transmission system, voice and data, and in computer design and development of computer system and instrument design of sensor and data acquisition equipments. So future of electrical, we are talking about the future of electrical. The main climate change in the big threat we face in the 2021 century.
all world talking about the climate change. You know, news also we are seeing pollution. So all world people are talking about the electricals and renewable energies resources and the electrical vehicles also. So major portion of the greenhouse gas is from automotive industry, and the government around the global are pushing for a more electrical future. Our regulations and our government also pushing the people to purchase the electrical vehicle, and the subsidies also given to subsidies to people, so that we can control the environment and future of the country and the world also. So we will see the exponential rise the electrical vehicle market in the coming year. जो आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है. सो अभी बहुत सारी कंपनीज ने अभी अपनी अपनी गाड़ियां डेवलप भी कर ली हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की. जो अगर मैं रेगुलेशंस की बात करूं तो अराउंड 2030 उसके बाद इलेक्ट्रिकल सॉरी डीजल्स और पेट्रोल्स गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी. सो फ्यूचर जो है अभी हमारे देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए यही है. और जापान और फ्रांस और जो अमेरिका जैसे जो देश हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादा यूज करते हैं, तो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं इन सब चीजों को. नॉर्मली इलेक्ट्रिकल स्कूटर अपने अभी अपने देश में भी हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स की जो कंपनी है वो काफी ग्रो कर रही हैं अभी ये जो हम इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स जो देख रहे हैं, मैं अपना एक एग्जांपल भी शेयर करना चाहता हूँ. लास्ट 6 मंथ ago I visited in France for the process benchmarking for the Manito group. So we are seeing कि वहां पर जो लोग हैं जो नॉर्मल जो ट्रैफिक से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स का यूज करते हैं और वो रेंटेड होते हैं. वी कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर एंड वी कैन गिव सम मनी वी कैन यूज टू सेव आवर टाइम. और आने वाला जो टाइम है कुछ टाइम से बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यही होने वाला है कि हम लोग सर्विसेज पे जो ऑटोमोबाइल जो कार्स हैं हम लोग सर्विसेज पे मिलने स्टार्ट होंगे. हमें जैसे हम ओला उबर है, इससे भी आगे चल के हम सेल्फ ड्रिवन की बजाय हम लोग इसको सर्विस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. So autonomous, we are talking about the autonomous, completely autonomous vehicles which can be driven simply can be seen on the road in near future. अभी आने वाले टाइम में हम लोग ऐसा देखेंगे कि गाड़ी को हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगले हो सकता है 50 या 100 साल बाद के जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग. सो आज से अगर हम 20 या 30 साल पहले की बात करें, गाड़ियों में कितने सेंसर यूज होते थे और कितने सिस्टम्स यूज होते थे. तो लेट्स ऑल रडार कैमरा lidar टेक्नोलॉजी द फ्यूचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजन. द मॉडल विल चेंज फ्रॉम द ओनरशिप टू द सर्विस ड्रिवन. जो मैं अभी बात कर रहा था अभी जो सर्विस ड्रिवन सिस्टम हो जाएंगे. सो डाटा ड्रिवन. We will be soon surrounded by the hundreds of sensors that send our data to remote and serve for the analysis purpose. अभी आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो गाड़ी में सेंसर इतने सेंसर्स हो जाएंगे कि जो रिमोट कंट्रोल से सब चीजें ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगी. दिस ट्रेंड में कंटिन्यू ऑन टू आवर व्हीकल्स. अभी जल्द ही जो बड़ी गाड़ियां होती जो कॉस्टली गाड़ियां होती हैं उसमें कॉस्ट इम्पैक्ट केवल यही होता है. उसके जो सिस्टम्स होते हैं वो एडवांस सिस्टम होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट BMW ऑडी, सो उनकी कॉस्ट इम्पैक्ट इसलिए रहता है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, ऑटोमेटिव जो व्हीकल्स हैं. एंड डाटा जनरेटेड बाय आवर कार विल बी ए वैल्यूएबल फॉर द मेंटेनेंस टू द इंश्योरेंस. And future of the cost of the data generated by our car will be more valuable than the car itself. This trend is already seen in the internet service industry also. So आने वाले टाइम में जो हम देखेंगे, अभी जो आप इस फोटो में स्लाइड में देख रहे हो, अभी जो आर पास टेक्नोलॉजी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो कमिंग स्लाइड्स में, कि जो आने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे
जो अभी हम लोग हमारे यहाँ यूज नहीं होती, जो काफी महंगी व्हीकल्स में यूज होती है, महंगी गाड़ियों में यूज होती है। तो हम लोग वो आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में इसकी जो। तो फ्यूचर ऑफ electrical engineers opportunity also we can say, electric motor design and manufacturing, and power electronic design and manufacturing, and battery design and manufacturing. These three are the opportunity for the electrical engineer in future also. आने वाले टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जो लिथियम बैटरी है उसकी जो कॉस्ट इम्पैक्ट की वजह से हम इतना जल्दी डेवलप नहीं कर पा रहे इन सब चीजों को। तो आने वाले टाइम में जो कॉस्ट इम्पैक्ट है जो बैटरीज का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा टेक्नोलॉजी से। और एंड ऑटोनोमस की बात करें हम लोग, सेंसर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड स्मार्ट एल्गोरिथम्स फॉर द व्हीकल कंट्रोल्स and data. If we are talking about the data driven sensor design and development, and IoT infrastructure and smart analytics, so these three commodities lead to for electrical engineers. So we need to take care in future these three parts. So what we are discuss currently, major hurdles for the affordable electric car is battery price. अभी जो हम बात कर रहे थे, अभी सबसे बड़ी हर्डल हमारे लिए बैटरी प्राइस का है। अभी एक व्हीकल्स के लिए हमें कम से कम 12 बैटरीज चाहिए, उसको चार्जिंग सिस्टम है, वो सब उसको मैकेनिज्म है, वो अभी धीरे धीरे हमारे देश में अगले कुछ सालों में स्टेशंस बन जाएंगे, चार्जिंग सिस्टम बन जाएगा। सो होल वर्ल्ड इज रिसर्चिंग टू मेक ए चीपर बैटरी। जो पूरी दुनिया है आज के टाइम में वो इसी पे रिसर्च कर रही है कि हम बैटरी को कैसे सस्ता बनाया जाए, कि ताकि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज मैक्सिमम कर सके। ये फोकस इज आल्सो बीइंग बिल्ड इन डाइवर्सिटी ओवर सप्लाई चेन्स, एंड सिंस रेयर मेटल यूज इन बैटरी कम्स फ्रॉम द फ्यू कंट्रीज व्हिच कैन रिकवर सप्लाई चेन। जो कुछ देश हैं जो अच्छे मेटल्स को यूज कर रहे हैं, उस सब लोगों के पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसमें हम देखेंगे कि लास्ट 2030 में जो प्राइजेस हैं, जो बैटरीज के प्राइजेस हैं पर किलोवाट, वो कितने डिक्रीज फॉर्म में जा रहे हैं। वो सारा टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसको इस ट्रेंड्स को डाउनवर्ड्स लेके जा रहे हैं। सो एंड आल्सो इस स्लाइड्स में मैं इसको देख नहीं पा रहा सर, ऊपर क्या लिखा आप लोग देख पा रहे हैं क्या? ऊपर जो सबसे ऊपर का जो कॉलम है, मेजर एरिया ऑफ रिसर्च। Yes, major area of research. A host of big technology companies are working towards fully autonomous car. अभी हमारी कंट्री की बात करें या अदर कंट्रीज की बात करें तो फुली ऑटोनोमस कार अभी नहीं बनी है। तो पीपल आर वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। करंटली नो कार इज सर्टिफाइड फॉर लेवल 5 ऑटोनोमी। अब हम पहले की बात करें, गाड़ियों में ड्राइवर ही सब चीजें देखता था। हम साइड में मिरर भी सेंसर, या सब चीजें नहीं होती थी, सब ड्राइवर को ही करना पड़ता था। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टीयरिंग, उसके बाद हम लोग कुछ चीजें हमने ऐड करी ताकि उसको कंफर्ट फील हो ड्राइवर्स को, और जो चांसेस हैं एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, वो उसको और बेटर हो, उसके लिए हमने कुछ चीजें ऐड की। देन पार्शली ऑटोमेटेड, उसके बाद हमने कुछ सेंसर्स या कुछ यूनिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके हमने ट्रैफिक को सुपरविजन करने की कोशिश की। उसके बाद अभी टेक ओवर इफ यू रिक्वायर्ड। आने वाले टाइम में अगर आपको टेक ओवर करना है साइड वाली गाड़ी को, पता अपने आप ऑटोमेटिक सेंसिंग लग जाएंगे। मैं भी आने वाली स्लाइड्स में 4 to 5 technology we are discussing in this meeting. So no driver intervention required. तो फुली ऑटोमेटेड कार, उसमें ड्राइवर की इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड नहीं होगा, हमें ऑटोमेटिक ऑपरेट होगी। सो ये अभी इस टेक्नोलॉजी में हम जो फ्यूचर हमारा है वो सेफ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि हमें इसमें जितना भी वर्क होना है सब सिग्नल्स बेसिस पे होना है, कि हम लोग सेंसिंग को यूज करके, रडार को यूज करके
न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ऑटोमेशन में जाने वाले हैं हम लोग इसमें। अभी हम लोग बात कर रहे थे जो टेक्नोलॉजीज अभी आ रही हैं जो इलेक्ट्रिकल्स के लिए, हम लोग क्यों इन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, हम लोग क्यों इस तरफ जाना चाहते हैं। टुडे टाइम्स टू मूव फॉर द कंफर्ट एंड सेफ्टी and stress free and smart, four things all peoples are wants as soon as possible. So we are working on fuel indication, navigation, RPA systems. So ये अभी जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये मेरी लास्ट कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि हम कैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं ये अभी हमें इंडिया में इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं और कुछ आने वाले टाइम में हम लोग यूज करेंगे, मैं उसका भी ट्रेंड इसमें दिखाऊंगा। और इसमें हम लोग जो कंफर्ट है, सेफ्टी है, स्ट्रेस फ्री, स्मार्ट है, इसको लेके क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग फ्यूल इंडिकेशन है, नेविगेशन है। आप आज देख रहे होगे पहले गाड़ियों में नेविगेशन कहाँ होता था, फ्यूल इंडिकेशन कहाँ होता था। आज हमें गाड़ी का पता चलता है कि गाड़ी में हमारा कितना फ्यूल लेवल बचा हुआ, हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर और चल सकती है। इंडिकेशन, अलार्म, अलर्ट्स, मॉनिटर, ऑटोमेशन, असिस्टेंट सिस्टम, वार्निंग्स। जब भी हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं, आपने फील किया होगा हमारे रेगुलेशंस का पार्ट बन गया है वो। अब हमारे रेगुलेशन का अब आने वाले टाइम में जितनी भी गाड़ियां हमारी बनेंगी इंडिया में, सब में आरपा सिस्टम लगाना पड़ेगा उनको। रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम, जैसे ही हम गाड़ी को बैक गियर लगाते हैं तो पीछे कोई भी ऑब्स्टेकल होता है तो सेंसर उसको अल्ट्रासोनिक रेज जनरेट करेगा और वो बैलून शेप में होगी, मैं आगे उसको रहेगा उसमें प्रॉपर, तो उसको डिटेक्ट करेगा। जैसे ही डिटेक्ट करेगा, पहले जितना नजदीक है साउंड करेगा, बीप 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 ऐसे लाइक ऐसे करेगा, और जैसे ही नजदीक आएगा कंटिन्यूअस बीप करेगा उसको। तो ये सब चीज टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम में हम लोग यूज करेंगे इसको। काफी सारे लोगों ने देखी भी होंगी ये सब चीज टेक्नोलॉजीज ना। सो just a minute. Blind spot warning, डोर ओपनिंग वार्निंग, ऑटो पार्किंग। अभी हम लोग कंफर्ट के लिए गाड़ी जब चलाना सब पसंद करते हैं, जब गाड़ी को पार्क करना तो सब लोग सोचते हैं ये इसको पार्क क्यों, मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है, सब लोगों को तकलीफ होती है पार्किंग करने में। तो आने वाले टाइम में ये सब चीजें आ जाएंगी कंफर्ट के लिए। तो गाड़ी को आपको पार्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने पार्किंग मोड में लगाना पड़ेगा गाड़ी को। गाड़ी क्या करेगा, जैसे ही जो मार्किंग होती है, पार्किंग की मार्किंग होती है, तो उस मार्किंग को और उसका जो एक मोड होता है पार्किंग मोड को, वो अपनी जो डायरेक्शन को, जो एंगल है उसका, वेलोसिटी है, उसको कंट्रोल करके गाड़ी को ऑटोमेटिक पार्क करेगा अपनी पोजीशन में। ये सब चीजें आने वाली है। इसमें अवेयरनेस में फीचर्स है, कंफर्ट है, सेफ्टी है। इस प्रोडक्ट में क्या अवेलेबिलिटी है, इनोवेशंस है। चार पीपल, प्रोडक्ट, पॉलिसीज, इसमें जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं वो सब चीज कवर होते हैं इसमें। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अभी आप देखा होगा आपने कि अगर हम सेफ्टी बेल्ट का यूज नहीं करते तो हमारी गाड़ी, कुछ गाड़ियों में हम गाड़ी को मूव नहीं कर सकते आगे उसको। ये सब रेगुलेशन सेफ्टी को लेके, ये सब हम जो ह्यूमन बींग्स को लेके ही स्टैंडर्ड बनते हैं। स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो, अलाइन हो सब लोग। तो रेगुलेशंस अभी जो आरपा सिस्टम का हमने बताया, अभी फ्यूल्स को लेके भी अभी BS6 जो आया है अभी, उसमें यही रेगुलेशंस हैं, हाउ टू रिड्यूस द पोल्यूशंस, हाउ टू सेव द पीपल। जितने भी रेगुलेशन है, जितने भी स्टैंडर्ड हैं, वो हम सब ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए हुए हैं, ताकि हम लोग और अच्छे से कैसे उस सबको यूज कर सकें। परचेज पावर, ग्रोइंग इकोनॉमी, राइजिंग द मिडिल क्लास। जिस टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर रहे थे अभी, उसको वन बाय वन हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो आरपा सिस्टम होता है मिडिल में जो हम देख रहे हैं, ऐसे के अल्ट्रासोनिक बैलून शेप में इसकी रेज निकलती है अल्ट्रासोनिक सेंसर से। हमने देखा होगा बम्पर में 3 से 4 सेंसर हम लोग यूज करते हैं,
उसको हम रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। उसमें एक कंट्रोलर यूनिट होती है, एक उस कंट्रोलर सिस्टम में एक रिसीवर होता है, वो एक सिग्नल को रिसीव करता है, वो आगे उसको बजर को अलार्म करके ड्राइवर जहाँ बैठा होता है गाड़ी में उसको कंट्रोल सिग्नल देता है कि आपकी गाड़ी कितनी अभी ऑब्स्टेकल से कितनी दूर है। रिवर्स आरवीसी रिवर्स व्यू कैमरा हमने देखा नॉर्मल गाड़ी में हम लोग यूज करते हैं आजकल। जब भी हमें नाइट में कहीं गाड़ी पार्क करनी होती है तो हम लोग आरवीसी यूज करते हैं, रिवर्स व्यू कैमरा। एंड ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, जो ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग है, जब भी हमें आसपास हमें कुछ चीजें जो कैमरा में नहीं आ पाती, कुछ चीजें हमारे जो कैमरा में रिवर व्यू, हर जगह कैमरा नहीं हो सकता, साइड में कैमरे नहीं हो सकते, बैक में फ्रंट में हो सकता है, लेकिन हम लोग इसमें जो साइड में कैमरे लगा के हम लोग इसको ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, हमें जब भी हमारे पास में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो हम उसको सेंस करके कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी विंडो ओपन है और सब चीज ओपन है तो हमें पता लग जाता है हमारे पास में कोई व्हीकल्स आ रहा है क्या, उसको सेंसिंग करके। ऑटो पार्किंग एड, अभी हमने डिस्कस किया था ऑटो पार्किंग एड के बारे में। तो ऑटो पार्किंग कैसे हो सकती है टेक्नोलॉजी का यूज करके, इलेक्ट्रिकल का। डोर ओपनिंग वार्निंग, अगर आपका डोर ओपन है, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है ट्रैफिक में, सेंटर में देखो आप पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है जहां से रेड एरो है, तो हमें पता रहेगा, हमारे पास बजर आएगा। अगर हमारा इग्निशन ऑन है गाड़ी का तो हमें पता रहेगा कि हमारे साइड से कोई व्हीकल आ रहा है और हमें उसको कंट्रोल करना है। कोई एक्सीडेंट से बचने के लिए हम सब ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, या स्मार्ट के लिए यूज कर रहे हैं। इजी कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं व्हीकल्स को। स्मार्ट सिटी ब्रेक स्पॉट, जो हैवी ट्रैफिक एरियाज हैं जैसे दिल्ली है या बेंगलोर है या जैसे कुछ कंट्रीज में जैसे चाइना है, तो वहां पर क्या होता है, जहाँ जहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं गाड़ी से दूसरी गाड़ी के टच होने के। तो हमें फ्रंट और रियर में जो लो स्पीड होता है ना, लो वेलोसिटी होती है, उस केस में ये जो सिस्टम है वर्क करता है। तो उसमें 4 to 20 किलोमीटर की स्पीड में ये वर्क करता है कि हमें उसमें आपको डैशबोर्ड पे ये स्पीड शो करेगा कि आपका व्हीकल सामने वाले व्हीकल से कितना पीछे है, अभी हमें इसको कितना कंट्रोल में रखना है। रियर क्रॉस ट्रैफिक सिस्टम, हमारी गाड़ी पार्किंग में आप मिडल में देख रहे होंगे, जैसे ही हमारे पीछे से कोई व्हीकल आता है हम गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी डिस्टेंस पीछे, हमारी गाड़ी से कितनी डिस्टेंस पीछे कोई व्हीकल आ रहा है, हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है। ऑटोमेटिक सेंसिंग लिफ्ट गेट, अगर हम मॉल से आ रहे हैं, कहीं शॉपिंग करके आ रहे हैं, हमारे दोनों हाथों में वो लगेजेस हैं, तो उस केस में भी हमें, अगर हम गाड़ी के पास जाएं तो कैसे हमारी जो पीछे की जो डिग्गी है गाड़ी की, वो कैसे ओपन हो सकती है उसको। ये भी टेक्नोलॉजी से काफी व्हीकल्स में यूज होता है, अभी हमारे यहाँ नहीं होता। तो आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है हम देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे इसको। अराउंड व्यू मॉनिटर, हम जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, हमें पता नहीं होता कि हमारा, मान लो इन केस कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हमें आस पास में कोई व्यू करना होता है कि हम जब वहां से गुजरे थे तो वहां पर क्या था, कोई हमें कोई चीज इन्वेस्टिगेट करनी है, तो व्यू मॉनिटर कैमराज होते हैं, तो ये इस पे वर्क करते हैं। जो फ्यूचर है और जो टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस की है अभी, जितनी भी टेक्नोलॉजी डिस्कस की है, रियर व्यू कैमरा, ऑटो पार्किंग असिस्टेंट, अराउंड व्यू मॉनिटर है, तो ये वर्ल्ड में कब आई है टेक्नोलॉजीज? ये जब पहली बार जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इनका, ये कब हुआ, और इंडिया में इनका ट्रेंड क्या है और कब तक आने वाली है? तो रियर व्यू कैमरा ये वर्ल्ड में 1991 में आई थी और इंडिया में 2010 में आई थी। सो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये अब धीरे धीरे हमारी कंट्रीज में और जो बाकी कंट्रीज में भी ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं ऑटोमेशन के लिए। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी की बात करनी है, हमें डाटा, तो हम लोग, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आपको डिटेल्स में डिस्कस करना है ये पीपीटी। सो अभी आरवीसी अभी किस रेंज में हमारी जो कंट्री में है, बिफोर 2000 हमारे कंट्री में सब चीजें नहीं थी, और 2000 बाकी कंट्रीज में भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही नहीं थी, बाकी कंट्रीज में भी नहीं थी। तो ये धीरे धीरे इनोवेशन, जो क्रिएटिविटी इनोवेशन जो हुई है, ये अब हर जगह आ रही है।
So after 2020, we can see here, so all technology will be there. So some Toyota, Liva, Etios and Innova, ये सब करने वाले हैं. अगर हम डिटेल में डिस्कस करें कि कैसे काम करता है आर पास सेंसर, मैंने अभी बताया, जब भी कोई भी ऑब्स्टेकल आता है गाड़ी के पीछे, हम जो जब भी रिवर्स गियर्स में हमारी गाड़ी होती है, उसको हम कैसे ऑब्स्टेकल को देख पाते हैं. कैमरा केवल आपको व्यू दिखाता है, सेंस. कुछ काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैमरा कैसे बताता है पीछे कोई है क्या. कैमरा ओनली व्यू दिखाता है हमें पीछे का व्यू क्या है, लेकिन जो 4 सेंसर्स लगे हुए बम्पर में, वो इसको सेंस करते, कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी चीज पीछे हमारे आती है उसको सेंस करके वो करते हैं. आरवीसी कैमरा, ऑटो पार्किंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये डिटेल में आपको अगर देखना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में डाला है, ताकि किसी की कोई क्वेरी हो तो कैसे काम करता है, कितने डिस्टेंस पे काम करता है, कितने टाइम के लिए काम करता है, तो इसको हम डिटेल में देख सकते हैं. ये स्मार्ट सिटी वाला है, जो कि हम जो बताया कि 4 to 20 किलोमीटर की स्पीड पे, ऐसे एक बैलून जो आप देख रहे हो, ऐसे बैलून टाइप अल्ट्रासोनिक रेज निकलती हैं. इसमें प्रॉपर एक डिजाइन होता है, कैलकुलेशंस होती हैं कि कितने सेंसर लगाने बम्पर में, हमने कितना एरिया कवर करेंगे, कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे, वो सब करके डिफाइन होता है कि ये गाड़ी में कितने सेंसर लगेंगे. वो सेंसर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रेज निकाल पाता है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. ये हम अभी डिस्कस किया हमने, ये डिटेल्स में है, आपको देखना है. वायरलेस चार्जिंग, अभी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन चीजों की एप्लीकेशन, अब हम चार्जर जो है, चार्जर की जरूरत हमें, जो वायरलेस, हमें कुछ नहीं करना. स्मार्ट और जो इजी और कंफर्टनेस के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है वो है. ये पूरा जो जो हमने सिस्टम अभी डिस्कस किया था, अभी जो हमने डिस्कस किया था, जो जितना भी टेक्नोलॉजी यूज की थी, इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे ये कंट्रोलर यूनिट, सेंसर यूनिट और बजर यूनिट, इनको मिला के ही हम सब लोग इनको मिला के ही हम कोई भी सिस्टम बना सकते हैं, इन चारों को बना के. दैट इज डिपेंड अपॉन आवर एप्लीकेशन. ये जो ऑटोमेशन के लिए इसको मैंने कंप्लीट अपना व्यू डाला है इसमें, लेवल 1, लेवल 2, जिसमें ड्राइवर असिस्टेंट है, पार्शियल ऑटोमेशन है, कंडीशनल ऑटोमेशन है, हाईली ऑटोमेशन है और फुल ऑटोमेशन है. तो ये ट्रेंड है, ये अभी जो 2030 के आसपास जो हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें इम्प्लीमेंटेशन होंगी. तो फॉरवर्ड ड्राइविंग है, साइड, रियर एंड पार्किंग सिस्टम जो एडास सिस्टम है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, उसका फ्यूचर ग्रोथ ये है, जिसमें दिखा हुआ नीचे देखो, हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑफ, आईज ऑफ एंड माइंड ऑफ. दैट इज कॉल्ड टोटली कंप्लीट ऑटोमेशन. जो फ्यूचर है आने वाले टाइम का, वो यही है. ये इसमें यही दिखाया हुआ है, सब पूरा ट्रेंड दिखाया हुआ है इसमें. ऑटोनोमस का कैसे ट्रेंड बढ़ा है, मतलब हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑफ, आइज ऑफ, माइंड्स ऑफ. ये स्लाइड मैंने इसलिए डाली है, कुछ लोग प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं कि इसको ये दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड सम पीपल आर टेकिंग प्रॉब्लम एज इट अपॉर्चुनिटी. तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी वर्क में, हमें प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी कंसीडर करके उसको वर्क करना चाहिए. एंड देयर इज वन मोर concept in regularly used in industrial also for continuous improvement. Make the plan and do and check and act. ये इंडस्ट्री में नॉर्मल यूज करते हैं हम. किसी भी प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले मेक द टीम, मेक द डिफाइन द प्रॉब्लम and make the containment action and define the corrective action and implementation and horizontal deployment and appreciate the team. These technology are using in our
So thank you for listening with your presence and your team. Thank you very much. Now, if anybody have any doubt or questions, you are free to ask Sandeep sir. Yes. सर Yes. हेलो सर, जो Yes. Yes. हाइब्रिड्स What's कार your होती है What's your good name? सर, माय नेम इज अभिनव। Yes, Abhinav. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर, जो हाइब्रिड्स कार होती है ना, Yes. जो 40 to 50 की स्पीड पे इनिशियली बैटरी पे वर्क करती है और उसके बाद पेट्रोल इंजन पे, Yes. Yes. उसमें क्या सिस्टम होता है सर कि मतलब बैटरी से वो एकदम पेट्रोल ऐसे कैसे यूज करने लग जाती हैं? बैटरी से। जैसे 40 to 50 इनिशियली वो बैटरी पे ऑपरेट होती हैं 40 to 50 की स्पीड पे, यस। और फिर उसके बाद जैसे ही वो 50 क्रॉस करती है तो फिर वो पेट्रोल इंजन यूज करने लग जाती है। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है बिना उसका, क्योंकि जो बैटरी है वो ज्यादा स्पीड नहीं दे सकती और इंस्टेंट जो टॉर्क है वो नहीं दे सकती हमें। जो हमारी एप्लीकेशन है हमें हाई स्पीड पे कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन है वो ज्यादा होती है। सर, फिर जो फुली बैटरी पे जो होंगी बेस्ड जो गाड़ियां होंगी तो फिर उनमें स्पीड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो बैटरी है, बैटरी बैंक कितना हमारा, उसमें उसमें आप देखो बैटरी बैंक के पे डिपेंड करता है। आपकी जो हैवी बैटरी जो कैपेसिटी है उस पे डिपेंड करता है आपका जो स्पीड। आपने कभी देखा है कि जो पिकअप है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का स्कूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कार होती है, उनका पिकअप कितना होता है? इनिशियली कम होता है सर उसका। कम होता है। जो इंजन से रिलेटेड लोग हैं वो जानते भी हैं इस चीज को। जो हमारे जो फ्यूल जो कंजप्शन होती है ना, जो पावर जनरेट होती है इंजन में, जो स्पार्क होता है, आप देखो पेट्रोल में ज्यादा होता है, उसके फ्यूल पे डिपेंड करता है वो, आपके फ्यूल पे डिपेंड करता है वो। आप डीजल व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल में डिफरेंस देखना आप, और जो सीएनजी व्हीकल्स उसमें डिफरेंस देखना। जो पिकअप होता है पेट्रोल का, जो पेट्रोल है उसका जो फ्यूल की जो क्वालिटी है वो मच बेटर है सीएनजी और पेट्रोल से। आप कभी देखना उसका जो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है व्हीकल्स का बहुत ज्यादा होता है। सर, पावर तो डीजल में ज्यादा होती है ना पेट्रोल से? पावर ज्यादा होती है लेकिन जो प्योरीफाई जो प्योरिफिकेशन होता है ना उसका डीजल्स का, वही पेट्रोल होता है। जो जो स्पार्क जनरेट करता है ना उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट करता है यस इंजन सर। में। और सर, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना, हम्म। वो सिर्फ अभी पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, वो डीजल के साथ क्यों नहीं आती? वो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता आपको कि ये ऐसा क्यों है कि मैं क्या इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बता दूं कि हाइड्रोमेट्रिक्स को लेके, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है बिना उसका। हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमारी डिजायर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके ऊपर डिजाइन होती है सब चीजें। हमारे जो रिजल्ट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। ओके। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी हो तो इसमें जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया इसमें आप यू कैन आस्क मी, नॉट एनी इशू। ये तो समझ में आ गया सर। हेलो सर। मैंने कोशिश की है इसको कवर अप करने की हर चीज को। यस भूपेंद्र। सर अभी हाल में सर एक एनडीबी कंपनी है सर, नैनो डायमंड बैटरी। ओके ओके। वो सर न्यूक्लियर डायमंड बैटरी पे काम कर रही है सर। राइट। सर वो बोल रहे हैं कि हम ऐसी बैटरी तैयार करेंगे जो एक बार चार्ज होने पर सालों तक चलेगी, वो डिस्चार्ज नहीं होगी। कब आएगी वो, कब बता रहे हैं सर? वो 230 तक बोल रहे हैं सर। तो हम उम्मीद करते हैं, अच्छी बात है, हम सब उसको देखेंगे, यूज करेंगे। तो सर वो काम कैसे करेगी सर?
सो उसके जो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, उसके जो सेल्स होते हैं ना बैटरी में, जो इलेक्ट्रोड Yes, sir. सेल्स होते हैं, उसके Yes, sir. मेटल पे डिपेंड करता है। आप देखो, आप अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो कंडक्टिविटी की बात करें इलेक्ट्रिकल में, तो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी गोल्ड की है, लेकिन गोल्ड बहुत महंगा है ना। Yes, sir. ये बात भी है। डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डेंसिटी, काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हम एल्यूमिनियम्स की यूज करते हैं, है ना, उसकी Yes, sir. स्ट्रेंथ, और कॉपर क्यों सर यूज क्या करते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम कॉपर क्यों यूज करते हैं, कहाँ हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। जहाँ में स्ट्रेंथ कम चाहिए होती है वहां हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, जहाँ में स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए वहां कॉपर यूज करते हैं। जहाँ कॉस्ट का मैटर नहीं आता हम कॉपर यूज करते हैं, जहाँ कॉस्ट का मैटर आता है वहां Yes, sir. एल्यूमिनियम यूज करना पड़ता है अपने को। So सर that is वो ऐसे depend upon बोलते our हैं, cost, efficiency and applications also. सर वो कहते हैं कि जो मोबाइल्स है उनकी बैटरी ऐसी तैयार करेंगे कि एक बार चार्जिंग होने पर अप्रोक्स 8 to 9 years चलेगी वो सर। सर देखो इज दिस आने वाले टाइम में अभी जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं अभी, ये सारी कंफर्टनेस और इजी और स्मार्ट, कैसे आप देखो पहले कभी ऐसा होता क्या था, हम घर ऑफिस से अपने घर के फैन स्विच ऑफ कर सकते हैं। नहीं सर। ऑटोमेशन है ना आज के दिन, आने वाले टाइम में और ज्यादा हो जाएगी। और लेकिन ये सब चीजें जो ह्यूमन बींग्स के लिए हम जो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम में हमारे दिमाग में से इतनी चीजें हो जाएंगी कि मुझे वो सेंसर बंद करना है, मुझे वो सब जो करना है वो ऑफ करना है। आदमी इतना डाइवर्ट हो जाएगा इन सब चीजों को लेके। चीजें अच्छी हैं लेकिन कई बार इनके जो कंट्रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एक ईवी कार से रिलेटेड भी था मेरा एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके। यस सर। यस सर अब माइंड में तो कुछ भी आइडिया आ सकता है सर। कुछ अब भी। देखो सबसे Yes, अच्छी sir. बात है, देखो आपके पास कुछ है ना पूछने के लिए, यू आर वेरी लकी। यस सर। सर हम जैसे क्या करते हैं अभी सर, हमारे पास बैटरी इतनी अच्छी नहीं है सर, हाई क्वालिटी में सर। और सर अगर दूसरी जो कंट्रीज है सर उनसे अगर कंपेयर करें तो मोटर भी इतनी एफिशिएंट नहीं है सर हमारे पास सर। देखो Yes, sir. जब भी क्या होता है, टेक्नोलॉजीज कैसे आती हैं, आप देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस बारे में आऊंगा, इसके ऊपर भी आऊंगा। टेक्नोलॉजी सबसे पहले स्पेस में आती है, Yes, sir. फिर डिफेंस में आती है, और Yes, sir. फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आती है, और फिर ऑफ हाईवे व्हीकल्स में आती है, फिर होम एप्लीकेशंस में आती है। तो जो बाकी Yes, जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, इन लोगों ने अपनी जो आर एन डीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, उनपे काफी इन्वेस्टमेंट की है इन लोगों ने। तो हम लोग अभी क्या है, अंडर डेवलपमेंट है। आने वाले 10 से 20 सालों में आप देखना हमारे देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे इनिशिएटिव आइडियाज इंप्लीमेंट होंगे, देखना। yes, sir. जो टेस्ला के एक मोटर है सर, यस ये टेस्ला कंपनी है सर जो एलोन मस्क की सर। यस सर उसके एक मोटर है जो 350 हॉर्स पावर के है सर, इलेक्ट्रिक मोटर सर। और सर उसका वेट है ना सर अप्रोक्स 30 kg है सर। 30 kg है। यस सर। तो आप उसकी 350 हॉर्स डिटेल्स पावर में की देखो, मोटर है आप सर। उसकी डिटेल्स में देखो, उसने वाइंडिंग्स में क्या मेटल्स यूज किया है उसने। सर देखो इसी सबसे चीज बड़ा के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें देखने के लिए, उसने कौन सी ड्राइव्स यूज की है। आने वाला जो टाइम है ना, जो आप बता रहे हो, जो मोटर्स के लिए, मशीन्स के लिए, जो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, जो हम किसी भी मोटर की या मशीन्स की जो स्पीड्स है ना, वो हम यस सर। वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिकल में, यस है सर। ना, नंबर ऑफ पोल से कर सकते हैं। लेकिन ये इनसे एक लिमिटेशंस है, इनकी एक लिमिटेशंस है इन सब चीजों की ना, नंबर ऑफ पोल बढ़ा दिए, वोल्टेज बढ़ा दी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ड्राइव्स हैं, वो आने वाला फ्यूचर है इलेक्ट्रिकल का। ओके सर। सर जो ईवी जो व्हीकल्स हैं सर, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम कम मिला, मतलब मैं इसको और ज्यादा बड़ा, काफी सारे आइडियाज दिमाग में थे मेरे को आपसे लोगों के साथ शेयर करने के लिए ना। एक है ना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल फैंस, जो आज के दिन है ना, एक ओरिएंट फैन है कंपनी,
उसने डेवलप किया है। आप देखोगे हमारे जो नॉर्मली फैंस यूज होते हैं उसमें ना 80 to 90 वोट्स के यूज होते हैं घरों में, उसने 10 to 15 वोट में आपको फैन को बना दिया है। सोचो आप, बिकॉज ओनली द टेक्नोलॉजी। उसने क्या किया, उसने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी उसको कंट्रोल करके उसने उसको 15 वोट में कन्वर्ट कर दिया उसको। आप देखो ना, पहले जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है आपका, जो लाइटिंग सिस्टम है, पहले हम लोग ये जो नियो लैंप होते हैं और काफी तरह के लैंप्स होते हैं, फिलामेंट लैंप होते हैं, आज एलईडी पे क्यों हम लोग? कंजप्शन देखो उसकी कितनी कितनी वोल्टेज उसने कम कर दी है। सोलर से देखो, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। जी सर। तो हम सब जो इंजीनियर हैं, जो यंग इंजीनियर बोलूंगा मैं आप लोगों को, जो यंग लोग होते हैं वो कुछ मतलब करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप लोग कुछ इनोवेशन, कुछ आइडियाज, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे करो जिसमें नई चीजें हो, नई इनोवेशन हो, नई क्रिएटिविटी हो, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज हो। रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनके ऊपर करो। कैसे कर सकते हैं? हेलो सर, गुड यस मॉर्निंग यस, सर। गुड मॉर्निंग प्रमोद। यस हाँ जी प्लीज। सर। सर मैं ये जो था सर, आपने एक बार बताया भी इसमें इनोवेटिव ये वायरलेस चार्जिंग का सर। सर तो मैं इसके ऊपर काफी दिन से सर प्रोसीड कर रहा हूँ सर, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी सर्च कर रहा हूँ सर गूगल रिसोर्सेज से। सर तो इसमें लास्ट में हमारे पास बात आती है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की, और सर एक इसमें कंसेप्ट आया था इंडक्टिव कपलिंग का सर। यस। और सर जैसे इस पे वायरलेस पे ही गए तो उसमें सर इसमें एक वो भी आया था कि जैसे रेडियो सिग्नल्स होते हैं ना सर, तो ये हुए तो वहां से डेवलप है जहां से निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का कंसेप्ट दिया था। राइट। ठीक है सर, और वहां से रेडियो वेव्स सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए थे सर। अब ये कंसेप्ट दोबारा से सर, एक कंपनी थी, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स थे, मैं एक कॉलेज सर, एक कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी बाहर की ब्रिटिश, तो उसमें सर उन्होंने रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी के जरिए सर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया सर उनको, रेडियो वेव्स को, और उसको माइक्रोवाट्स में कन्वर्ट कर दिया सर, फ्रीक्वेंसी चेंज करके। बिल्कुल। ये एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन जो वर्ड है और जो टेक्नोलॉजी वर्ड है, ये हमें इन्हीं से निकल के आती सब चीजें। अगर मैं दो तीन चीजें पूछूंगा आप लोगों से, चलो इसमें आपने अच्छा सवाल किया, ये जो वायरलेस चार्जिंग वाला सिस्टम कैसे होगा, तो इसमें आप डिटेल में जाओगे ना, इसमें जो इंडक्शन जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स के थ्रू होता है, तो आप इसमें डिटेल्स में जाके स्टडी करो। हाँ जी सर। सर इसमें जैसे इंडक्टिव कपलिंग का एक जो कंसेप्ट आया सर, इंडक्टिव कपलिंग, उससे हम मतलब जैसे ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन कुछ मीटर्स तक सर हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर सकते हैं सर। उसमें उसमें सर एसी को ही हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं और बाद में उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। उसमें जैसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, अगर फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर ले सर, तो उससे हमारा ये वायरलेस जो है ये सक्सेस हो जाएगा सर हमारा। गुड। चलो वेरी गुड प्रमोद। अभी मैं आपसे ना दो तीन सब लोगों से दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा जो नॉर्मली इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा वो, ताकि आप लोग उसको टेक केयर करो इन फ्यूचर। कभी हमने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता? ये साइनवे नहीं होती, वो जो जेंस जो कहता है वो ये कहता है कि वो हमेशा चेंज होना चाहिए फजक्स, तो उसमें फजक्स चेंज नहीं हो पाता। कौन? सिद्धार्थ? यस। और कोई?
सर डीसी के अंदर है ना वो एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है, तो उस वजह से इंडक्टर है ना उसके साथ चेंजिंग फ्लक्स लिंक नहीं कर पाता, और इस वजह से वो डीसी के ऊपर वर्क नहीं करता। और उसके अंदर कपलिंग होनी बहुत जरूरी है, और अगर चेंजिंग फ्लक्स नहीं होगा तो वो किसी और सर्किट के साथ कपल नहीं कर सकेगा। ओके, और कोई? चलो, आपने आंसर कुछ लोगों ने मिलता जुलता ही दिया उससे रिलेटेड। जो डीसी होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और जो साइकिल साइन वेव होती है इंडक्शन के लिए, वो हमें साइन वेव चाहिए होती है। ठीक है सर? यस Sir, can I ask one question regarding DC motor? यस यस यस, आई सर ट्राई टू रिजॉल्व योर ओके इशू। सर, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर डीसी मोटर के अंदर जो अल्टरनेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होता है, हाउ प्रोड्यूस अल्टरनेटिव टॉर्क इन डीसी मोटर? Yes, very good question, and very good question. I again appreciate your question. जो कॉम्यूटेशन प्रोसेस पढ़ा है हमने, किसने किसने पढ़ा? हमने सबने पढ़ा होगा कॉम्यूटेशन प्रोसेस। कॉम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर डीसी जनरेटर के अंदर एज ए वर्क कम्यूटेटर का एसी को डीसी में मतलब इजीली कर देता है, ओके। बट डीसी मोटर के अंदर में कम्यूटेटर का जो रोल है वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने भी इस समय क्वेश्चन बोला। कॉम्यूटेशन प्रोसेस यही होता है, उसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, उसमें 20 मतलब किसी भी कॉम्यूटेटर की डिजाइन पे डिपेंड करता है। आप उस पे देखोगे एक फील्ड के ना, जो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे राउंड एक फील्ड होती है, उसमें ना मैग्नेट होते हैं। ठीक है, 4 पोल, जैसे ना 2 पोल 4 पोल बोलते हैं, वो क्या होता है? वो यही होता है। जब हमारा रोटर उसमें मूव करेगा फील्ड में, तो एक टाइम नॉर्थ साउथ होगा, एक पोल पे नॉर्थ होगा, एक पे साउथ होगा। हमारा कॉम्यूटेटर उसमें मूव करेगा। जो कॉम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है, नॉर्थ साउथ करके वो क्या करेगा उसको? सर कट करेगा ना? नहीं 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 नहीं, तो जो आर्मेचर में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनी है जो, यस, है ना, उसको कन्वर्ट करेगा एसी में। वो जनरेटर की बात कर रहे हो ना आप लोग? डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ। डीसी मोटर की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो उसमें तो हम लोग जो सप्लाई देते हैं, फील्ड पे सप्लाई देते हैं, उसे कॉम्यूटेशन से आर्मेचर पे जाती है। उसमें उल्टा हो जाता है, जनरेटर में और मोटर में दोनों का वाइस वर्सा होता है। ओके सर। हाँ, आप ना कॉम्यूटेशन प्रोसेस को मैं यहाँ ना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस पे ना अभी। सर जब क्योंकि कभी डायग्राम के लिए होना पड़ेगा उसके लिए कि कैसे उसके अंदर जाता है, रोटेट यस करता यस, है। जो कॉम्यूटेशन प्रोसेस है ना, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जो आप कॉम्यूटेशन प्रोसेस है, यू नीड टू स्टडी कॉम्यूटेशन होता कैसे है। और ये बहुत सारे, मैं ये आपको फ्रैंकली बता दूं, हम लोग है ना इंजीनियर सब बन के चले जाते हैं, फाइनल तक हमें ये तक नहीं पता था कॉम्यूटेशन प्रोसेस हुआ कैसे है मशीन के अंदर। प्रैक्टिकली कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाता, उसको पढ़ने में सब कर पाते हैं। तो आपने ना जब भी कभी मोटर खोल के देखोगे ना, डीसी मोटर, मैंने एक साइड दिखाई भी थी, मैं कोशिश करता हूँ एक मिनट, मेरी प्रेजेंटेशन जो स्टार्टिंग में मैंने मोटर दिखाई थी ना आपको, यस सर, उसमें एक मिनट, मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें ना आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर लगा हुआ, देखना आपने, उसमें ऊपर उसकी जो मैग्नेट लगे हुए ना, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, यस सर, उसको स्टडी करना आप, और यूट्यूब पे एक वीडियो देखना कम्यूटेशन प्रोसेस की। और प्रताप सर ने अभी एक नंबर भी, मेरा ना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया अभी। हेलो सर। यस भूपेंद्र सर अभी जैसे इंडस्ट्रीज भी आएंगे सर हायर करने के लिए, तो हमें अपनी स्किल्स में भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जो हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रीज में इसका अपोजिट ही बताते हैं सब, जैसा हमने सुना है। मैं एक मिनट भी लाइन में सब लोग ना, मैं प्रताप सर से मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा इससे रिलेटेड ही थोड़ा सा।
हेलो, ठीक है ठीक है, हाँ ले सकता हूँ ना जी? हाँ ले सकते हो 2-3 मिनट। हाँ, मैं इसलिए पहले पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इन्होंने पूछा है कि इंटरव्यू में हमें कैसे करेक्ट करना चाहिए, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। कई बार क्या होता है, हम लोग है ना अपना मैक्सिमम देने के उसमें रहते हैं कि मैं ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, वो भी बता दूं, वो भी चाहिए वो बता दूं। कभी भी ऐसा नहीं करना। स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए आपका, जो उनको आपसे सुनना है, व्हाट दे वांट। आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और वो आता है नॉलेज से। यू नीड टू बेसिक थिंग्स एंड इन डेप्थ आल्सो। आपके पास हर चीज का आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आंसर होना चाहिए। अगर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो, वो सेटिस्फाइड नहीं है इंटरव्यूअर आपसे, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो फिर आपको वो नहीं करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको क्या चाहिए आपसे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं। एक इंजीनियर का काम क्या होता है, कभी किसी भी इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो वहां हमारा रोल्स क्या होता है। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में दो चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट, और बीच में प्रोसेस होता है। इनपुट हमारा रॉ मटेरियल्स हम सप्लायर से लेते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, और हम इन हाउस कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, और आउटपुट में हमारा जो रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट्स होता है, वो हम कस्टमर को देते हैं। चाहे हमारा एंड कस्टमर हो, चाहे हम किसी कस्टमर को दें, फॉर एग्जांपल मारुति, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, जो भी है। हम जो हमारे जो ड्राइंग्स हैं, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सबसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, आपको सिंबल्स हैं, उनकी स्टडी करनी है आपको। आप जब तक आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मल्टीमीटर्स हैं, आपकी लैब में मल्टीमीटर्स हैं, टोंग टेस्टर हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वर्नियर कैलिपर्स हैं, माइक्रोमीटर है, उनका लिस्ट काउंट कितना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको इनकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम यूज करते हैं इनको, इनका रोल क्या है। और हर चीज में आपको ना वाई 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 एनालिसिस, 5 टाइम्स वाई वाई आपको एनालिसिस करना होता है हर चीज में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी एनालिसिस में, किसी भी क्वेरी में। हमारे पास हर चीज में ये होना चाहिए, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम डूइंग दिस। आपने कभी टेस्ट, जब आप नॉर्मली टेस्ट करते हो ट्रांसफार्मर के, मोटर के, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कभी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीजें, क्या मिलेगा मुझे इससे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने के लिए जो कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं करना। आप उसको प्रॉपरली उसको देखो, उसमें क्यों ये जरूरी है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हमें ये सब चीजें क्यों चाहिए। सर भूपेंद्र, इसमें हाँ बोलो। यस सर, जो इंडस्ट्रीज आते हैं सर, यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जो कैंपस के अंदर आते हैं सर, वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मतलब हमारा हम जिसे हायर करें उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। यस, राइट क्वेश्चन। कभी भी जब भी आपके पास कंपनी जाती हैं तो एक जीडी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास भेजती होंगी कि वो हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए। तो मैं थोड़ा सा, अगर टाइम की अभी शॉर्टेज है तो मैं डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर दूंगा। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम किसी भी इंडस्ट्री में एक तो डिजाइन डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहता है, जो हमारी ड्राइंग्स बनाता है, जो स्पेसिफिकेशन तैयार करता है हमारे मटेरियल्स की, पार्ट्स की, कि हमें चाहिए क्या। अगर आपकी कंपनी में कोई कंपनी कहती है मुझे डिजाइन में इंजीनियर चाहिए मुझे आपके यहाँ से, तो डिजाइन में आपको जो स्पेसिफिकेशन, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्पेक क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी, किसी मेटल की आपको मटेरियल डिटेल्स पता होनी चाहिए। कॉपर में क्या कंडक्टिविटी है, एल्यूमिनियम में क्या है। इंजन की बात करें, मैकेनिकल, कोई इलेक्ट्रिकल की बात कर देते हैं, वीसीबी क्या है, एलसीबी क्या है, ये जितने भी सर्किट्स हैं, सर्किट डायग्राम्स क्या है, पूरा हमें डिटेल्स में पता होना चाहिए। फिर बात आती है सर्विस डिपार्टमेंट की, आपको व्हीकल्स का पता होना चाहिए। अगर किसी कंपनी को आपको सर्विस में जाना है तो आपको व्हीकल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, ये फंक्शन गाड़ियां कैसे काम करता है। अच्छा, आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात करें, आपको मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में क्वालिटीज में वैकेंसी, तो आपको मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एग्जांपल करें कि अभी आने वाले टाइम में कौन सा स्टैंडर्ड आ रहा है, कैसे आ रहा है, मेजरमेंट में क्या क्या है, यूनिट्स क्या क्या है, किसी मेजरमेंट्स की यूनिट क्या है, उसकी मटेरियल डिटेल्स क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, फोर्जिंग है,
ये सब चीजें फैब्रिकेशंस हैं, कैसे होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या यूज करना आता है, मल्टीमीटर, टोंक टेस्टर, वोल्ट मीटर, सब चीजें कैसे यूज होती हैं, ये सबसे पता होनी चाहिए आपको। प्रोडक्शन में आपको मैन पावर हैंडलिंग कैसे कर, अगर किसी कंपनी में आपको प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है तो वो सबसे पहले आपके अंदर ये देखेंगे कि आपकी जो टीम, आप टीम में कैसे काम कर सकते हो। इंडिविजुअल परफॉर्मर आज के दिन हर इंडस्ट्री में एक से एक बढ़ के बैठे हैं लोग, एक से एक बढ़ के लोग बैठे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन कंपनी आगे उसी व्यक्ति को करती है जिसके अंदर सबको साथ लेकर चलने की कैपेबिलिटी है। लीडर वही होता है जो प्रॉब्लम्स में अपने आप को आगे रखता है और जो एप्रिसिएशन में अपनी टीम को आगे रखता है। कंपनी को प्रोडक्शन में या जो पीपीसी प्लानिंग मैनेजमेंट में वो लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, कुछ डिसिप्लिन्स लगता है इंटरव्यूअर को कि आप ज्यादा डिसिप्लिन्स हो, जैसे मान लो आपकी जो फॉलोअप है बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, आप ना अपने कमिटमेंट को लेके बहुत वो इंश्योर हो, कि उनको लगता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग के होते हैं, जैसे सप्लायर से कस्टमर से प्लानिंग करनी होती है जिनको। अब हमारी कमिटमेंट अच्छी होगी तो हम लोग सब चीज करा सकते हैं। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ 40% आपकी जो नॉलेज है काम आती है, 40% ये ट्रूथ है। जो 60-70% आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो टीम बिल्डिंग है, आप टीम के साथ कैसे काम करते हो, लोगों से आपका जो कन्वर्सेशन कैसा है। कुछ इंडस्ट्रीज का तो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको लेके, कि वहां की जो पॉलिसीज भी ये बनी होती हैं कि रिस्पेक्ट ऑफ पीपल्स, रिस्पेक्ट ऑफ वर्क प्लेस, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, ये जो पॉलिसीज हैं। और गोल्स भी ऐसे बना रखे कुछ इंडस्ट्रीज ने, 1 गोल, 1 वॉइस एंड 1 मिशन, 1 टीम, 1 वॉइस, 1 गोल। सोचो आप कितनी बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी इसको बनाने के लिए कि लोगों कि हम सब एक हैं, 1 टीम, वी आर 1 टीम, 1 वॉइस एंड 1 गोल। सब अलाइन हो, सब टीम में काम करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। ये सब चीजें बहुत इंडस्ट्री में बहुत जरूरी हैं। डिसिप्लिन, टीम वर्क, लीडरशिप, जो लीडर होते हैं उनका रोल ही यही होता है। Anybody want to know? Bhupender, we are running short of time. We will have another session also regarding the skills required for industry. ठीक है? Okay, sir. और संदीप सर का नंबर मैंने शेयर कर दिया है. Students can directly talk to him also. तो ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग कभी भी किसी भी समय आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें हमने फेस की कभी आप लोगों को फेस ना करनी पड़े इस तरह की। कभी इस तरह की गाइडेंस, मतलब डिटेल्स गाइडेंस जो होती है, जो फ्रैंकली आपको जो बता रहा हूँ, जो चीजें हैं, कुछ चीजें मैं ऐसी भी कर सकता था कि जो प्रोफेशनल को आगे करके आप लोगों को बता सकता था, लेकिन मैंने आपको वो चीजें डिस्कस करी हैं जो एक्चुअल इंडस्ट्री में होती हैं और जो हमें करनी होती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं डिटेल्स में। Thank you, sir. Thank you very much for giving your precious time to us. Now, I would like to call Dr. Preeti Prabhakar ma'am for vote of thanks. Ma'am, please. Very good morning. Expert from industry, Mr. Sandeep Bhardwaj ji, respected Shri Pratap Singh Malik ji, Director Training and Placement, my dear colleagues and students. It's my proud privilege and immense pleasure to extend a hearty vote of thanks to Sandeep Bhardwaj ji on behalf of Training and Placement Cell and Department of Electrical Engineering. Training and placement is an imperative performance index of outcome-based education, and webinars and industry interaction programs certainly enhance this index. Thank you very much, Sandeep ji, for sharing your experiences and findings in industry. I am sure everyone now has far more understanding of the recent scenario
in industry, career opportunities, especially in renewable, electrical vehicles, automation, and control. We look forward to more opportunities for sharing your expertise, sir. Thank you very much for sparing your precious time and enlightening our students. I would also like to place on record my gratitude to Pratap ji, whose leadership is providing such opportunities to us, and for their dedication and efforts. Really, our students now are trained with soft skills, and they are providing on campus and off campus driving placement drives. Thank you very much, Sandeep ji, and thank you, Pratap ji. Thank you, ma'am, and it's my pleasure. And I would like to thanks to Guru Jambeswar team for your presence also, and thanks to